And the reason behind starting with current electricity is, you have studied current electricity in 10th standard also. The basic things like, what is electric current, what is potential difference, what is potential, what is free electrons, all these things, right? Yes. Yes, sir. Fine. So today also you will start with the basics, then we will take it to the 11th standard portion. So now, as I told, we will start with the basics. If I consider, so we'll start with current, electricity. I hope the board is clear, Vacha, and the voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. So current, electricity, yeah, electric current through conductors. How the current will flow through the conductors, that you're going to discuss. Now, if I consider any substance or any material, right? We all know every substance, every material, they are made up of atom, right? Right, Vacha? Yes. Then this atom, initially they told it is not divisible. Then when J.J. Thomson discovered electron, then they found, atom can be divided into two type, it is made up of two materials. One, two basic particles. One, it is going to be electron. So it's going to have electron, and at the center, you're going to have a dense matter that is going to be nucleus. So they realized it is made up of nucleus and electron. Now, nucleus, it is very dense, as I told, it is situated at the center of atom, and the electron, they are light in weight. So they will revolve around the nucleus in its own atomic orbit, right? Now, nucleus, again, they are made up of nucleons. Nucleon. Now, nucleon, exactly, it has got, two types. One is neutron, and another, it's going to be proton. But everybody followed up to this much? Yes, sir. So, atom, it is made up of three elementary particles. One is neutron, proton, electron. I hope it up to this much it is very clear, right? Yes, sir. Now, Yes, sir. first I will consider bacha, neutron. So as far as neutron is considered, it is neutral in nature. Neutral in nature. So when I say neutral in nature, it means the charge on neutron, Q, N for, of course, neutron will be 0, right? Even though charge is 0, they have got definite mass, and the mass of neutron, it is 1.69. So if you know 1.69, it is okay, but to be very precise, it is 6949 into 10 raised to minus 27 kg. This is going to be the mass of neutron. Which are clear up to this much? सर वो Yes, मास पहले sir. से दिया है ना? क्या बोल रहे हो बच्चा? सर वो मास पहले से दिया रहता है ना उनका कैलकुलेट? हाँ, ये तो आपको पहले से दिया रहता है, मतलब ये उन्होंने फाइंड आउट किया कितना मास है, ये आपको याद रखना है, आगे जाके यूज हो गए वैल्यूज, राइट? Yes, sir. हाँ, बच्चा प्रोटॉन आपको पता है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Now charge on proton, it is going to be obviously plus है, it is 1.6 into 10 raised to minus 19, of course, coulomb. And mass of the proton, it is very close to the neutron, but neutron से थोड़ा कम है, right? I mean इधर देखो मैंने 49 लिखा है, तो इधर देखो 1.69, ये तो सेम है, तो it is 25 into 10 raised to
-27 kg। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 25 and 4 मतलब फर्क है 0.0025 का, राइट। इसका मतलब दोनों का मास ऑलमोस्ट क्या है बच्चा, सेम है, राइट। Yes, sir. हाँ, अभी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लाइट इन वेट है, बट इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव। नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी, बच्चा मैग्नीट्यूड में इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है, बट नेचर अपोजिट है। ये प्लस है तो ये माइनस है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी मास भी इसका बहुत कम है कंपेयर टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इट इज अराउंड 9.11 इंटू 10⁻31 kg। आप देख लो, इधर -27 है, इधर -31 है, बराबर है। Yes, sir. बस इधर तक क्लियर है, सबको क्लियर है। तो Yes, आपको ये sir. चार्ज कितना, मास कितना, सब याद रखना है। अभी मेरे को बताओ बच्चा, न्यूक्लियस का अंदर न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन में दो टाइप है, एक न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है और एक प्रोटॉन जो पॉजिटिव है। तो बताइए मेरे को, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा बच्चा? Positive. वेरी गुड। Positive. तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। Yes, sir. एंड इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा? नेगेटिवली चार्ज्ड है। एंड न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो बताओ बच्चा, व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम? Neutral. वेरी गुड बच्चा, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। हर एक एटम, किसी एटम ले लो, ऑक्सीजन का एटम लो या नाइट्रोजन का लो या किसी का भी लो, वो न्यूट्रल इन नेचर रहता है। सो एवरी एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। यही बच्चा आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी एवरी एटम। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1, every atom is neutral in nature। अभी कोई पूछ सकता है कि न्यूट्रल क्यों है, तो आपका पास आंसर होना चाहिए क्योंकि एटम के अंदर चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। और हर एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन से बच्चा उतना ही प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन से उतना ही प्रोटॉन है। तो नेट चार्ज क्या होगा बच्चा? ऑब्वियसली 0, राइट। Yes. बच्चा Yes, समझ में sir. आया सबको? और कॉन्सेप्ट नंबर 2। सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है बच्चा, देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियसली फर्क है, बट चार्ज सेम है, राइट। तो मैग्नीट्यूड में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीट्यूड में चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है बच्चा? सेम। आई मीन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। इज इट ओके? Yes, sir. ऑपोजिट इन नेचर मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। अभी मास का बात करूंगा तो ऑब्वियसली मास किसका ज्यादा है बच्चा? प्रोटॉन का ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है? ऑब्वियसली प्रोटॉन का ज्यादा है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, मास ऑफ प्रोटॉन इट इज 1890 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट हम लोग अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन इको 2000 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। बट एक्चुअली ये प्रिसाइज वैल्यू है, बट कैलकुलेशन में 2000 लिया तो जल्दी हो जाता है, इसके लिए लेते हैं। इज इट ओके? तो और वही रिलेशन मास ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी रहेगा, दैट इज 2000 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्वियसली क्या रहेगा बच्चा? इक्विवेलेंट रहेगा। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ, sir, बोलो sir, बोलो बच्चा। sir, concept 2 थोड़ा एक बार फिर से बताया ना। बच्चा कॉन्सेप्ट 2 जो है, जो वैल्यूज मैंने आपको लिखा है उसका बेसिस पे है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मेरे को चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या दिख रहा है बच्चा? सेम दिख रहा है। देखो ये वाला और ये वाला। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट 2 पे क्या बोला मैंने? द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
and proton is same in magnitude में दोनों सेम है, but opposite in nature. अभी समझ में आया पॉइंट? Yes. क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, बराबर है, राइट? Yes, sir. ठीक है, अभी बात करेंगे मास का, क्योंकि ये -31 है, -27 है, तो ऑब्वियसली -27 ज्यादा है बिकॉज इट इज क्लोज टू 0, राइट? तो अभी जब रिलेशन देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन विद इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1890 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, बट हम लोग कैलकुलेशन में क्या करते हैं बच्चा, मास ऑफ प्रोटॉन को 2000 टाइम्स, मतलब अप्रोक्सीमेशन किया है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इधर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी ठीक है? Yes, sir. बच्चे एवरीबॉडी फॉलोड? Yes, sir. फाइन बच्चे, कंप्लीट कर लो। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, सबको पता है, आई नो सबको पता है कि हर एक एटम न्यूट्रल होता है, और उसका रीजन ये है अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, बात खत्म। बाकी वो चार्ज एंड मास का एक्स्ट्रा है, वो जो आपको याद रखना पड़ेगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट कर लो इसको। So once it is done, please let me know. एक बार लिखने के बाद मेरे को बता दो बच्चा, then we will continue.
Done. But everybody finished? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बच्चा, fine. So we'll rub this. चलो, तो हम लोग को पता तो चला कि आटम न्यूट्रल है, तो जो भी हम लोग ने लिखा है उसका बेसिस पे हम लोग एटम का स्ट्रक्चर का बारे में डिस्कस करेंगे. वी विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ऑब्वियसली केमिस्ट्री का उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सेल्स सब उसका बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना ही करेंगे. सो नेक्स्ट इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो अभी हम लोग को पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो है रेवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, राइट. तो अभी एक एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर लिया. कोई बता सकते हैं कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा? 29. कितना है? 29. तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में 8 होगा, थर्ड में 18 होगा, लास्ट में 1 होगा. देख लो, राइट. 8, Yes, sir. 10, Yes. 28, 29 बराबर है. Yes, sir. बच्चा ये जो ऑर्बिट्स में है, चलो थोड़ा डिस्टेंस पे रखता हूं, 2, 8, 18 एंड 1. बच्चा ये जो ऑर्बिट्स है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. अब ये जो ये 3 जो ऑर्बिट है, ये तीनों, इसको हम लोग इनर ऑर्बिट्स बोलते हैं. ऑर्बिट्स. अभी इनर ऑर्बिट्स हमेशा न्यूक्लियस का थोड़ा क्लोज होगा, तो आर कम होगा डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है, राइट, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो स्ट्रांग होता है, राइट. इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट्स हैं, दे आर स्ट्रांगली बाउंड टू न्यूक्लियस, स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस, बाउंड टू द न्यूक्लियस. बच्चे बराबर है. बट ये जो Yes, sir. रहता है Yes. 1, ऑब्वियसली ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो एक ही हो सकता, राइट. एंड इधर क्या होगा बच्चा? आर ज्यादा है तो फोर्स कम है, तो फोर्स कम है तो आपको पता है ये वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस होगा, वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस. इज इट ओके बच्चा? इज इट ओके? वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, sir. ठीक. तो चलो मैंने न्यूक्लियस को सेंटर पे रखा, जिसका चार्ज प्लस है, तो ऑब्वियसली एन लिख दिया. अभी क्या होता है बच्चा? सर ये वाला और एक बार बता ना. कौन सा बच्चा? सर ये ऑर्बिट मोस्ट ऑर्बिट वाला जो 1 का लिया आपने. ये वाला नहीं. फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एन वाला ना, हाँ हाँ. वो तुमको डायग्राम में समझ में आएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होगा. मतलब सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट आता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, राइट. यस सर. देखो अभी देखो, ये क्या है बच्चा? न्यूक्लियस है, बराबर है. अभी ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, देन इसका अराउंड सेकंड ऑर्बिट, देन इधर थर्ड ऑर्बिट होगा. एंड जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएगा, अभी इधर जितना डिस्टेंस है उससे ये ज्यादा होगा, इधर जितना डिस्टेंस है इससे ये भी ज्यादा रहेगा, इससे जितना मतलब ऑर्बिट का बीच में डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा होता जाएगा. क्लियर है? यस. Yes, sir. हाँ. अभी बच्चे देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली आप 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 2 है. नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप 4 ऊपर बनाएंगे, 4 नीचे बनाएंगे. देन नेक्स्ट में ऑब्वियसली 18 है, तो 9 ऊपर बनाएंगे, नीचे 9 बना. राइट. Yes. यस सर. ये कम है क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बराबर है ना। लास्ट में ऑब्वियसली हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इधर। अभी दिख रहा है ना कि ये अंदर है तो इसके लिए इनर ऑर्बिट्स है, ये बाहर है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, राइट। Yes. Yes, sir. Sir. हाँ, अभी बच्चा देखो, जितना भी इलेक्ट्रॉन अंदर है वो न्यूक्लियस का नजदीक है कंपेयर टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन को ये वाला लिया, ठीक है बच्चे, डायग्राम में जो प्रॉपरली बना नहीं है क्योंकि ये क्लोज होता है, मतलब इधर जितना डिस्टेंस है उससे ज्यादा इधर होना चाहिए, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा है, तो आपका रेडियस जो है ना बढ़ते जाएगा, राइट। राइट बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. आर जो है कम है तो फोर्स ज्यादा है, एंड ऑन द अदर हैंड ये इलेक्ट्रॉन को मैंने कंसिडर किया तो ऑब्वियसली आर ज्यादा है, फोर्स कम है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट्स में है, आई मीन इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट्स में है प्लस न्यूक्लियस, इसको हम लोग आराम से मतलब डिटैच नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते एटम से। इसके लिए हम लोग इसको मतलब इनर ऑर्बिट्स प्लस न्यूक्लियस, उसको हम लोग कोर ऑफ एटम बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज कोर ऑफ एटम। इज इट ओके? कोर ऑफ एटम, बराबर है बच्चा। सर मतलब Yes. एक्स्ट्रा ऑर्बिट रहता है। ऑर्बिट नहीं है बच्चा, ये जो रीजन है इसको कोर बोलते हैं, उधर ऑर्बिट नहीं है, वो रीजन को, स्पेस को हम लोग कोर ऑफ द एटम बोलते हैं, राइट। Sir, core मतलब क्या? कोर मतलब इट इज ए, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसको आप जल्दी इफेक्ट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, राइट। Yes. बच्चा समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं है कि निकाल ही नहीं सकते, बट जल्दी नहीं निकाल सकते, या आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि एकदम स्ट्रांगली बॉन्ड है न्यूक्लियस का, राइट। Yes, sir. बच्चा कोई इनके सोच रहे ये ऑर्बिट है, बच्चा वो गलत है, ये एक रीजन है। इनफैक्ट इधर ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो इधर ही आता है, मतलब खाली इनर ऑर्बिट्स प्लस न्यूक्लियस, ये रीजन एटम का आप जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या कुछ चेंजेस उसमें नहीं कर सकते, राइट। इसके लिए उसको कोर बोलते हैं। कोर मतलब मेन पार्ट। इज इट ओके? yes, sir. Yes, sir. हाँ, आई होप इधर तक तो सबको समझ में आ गया, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. अभी आप याद करो बच्चा, आपने ये भी पढ़ा है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है उसको हम लोग वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, याद है। Yes, एंड ये sir. जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, राइट। Yes, sir. यस सर। अभी बच्चा ये जो एटम है ये किसी मटेरियल का हो सकता है। अभी ये एटम क्या करता है बच्चा, इसको मैंने किधर रखा, फॉर एग्जांपल मैंने सराउंडिंग में रखा, सराउंडिंग, वो रूम का हो सकता है या बाहर हो सकता है। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर एटम का टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, एटम हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा सराउंडिंग से। क्या करेगा बच्चा, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा सराउंडिंग से। इज इट ओके? सर फोर्थ ऑर्बिट ना? नहीं, पूरा एटम ऑब्जर्व करेगा बच्चा, फोर्थ ऑर्बिट नहीं, पूरा एटम ऑब्जर्व करेगा हीट एनर्जी को। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है एटम से, समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये ऑब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, इसको एटम दो तरीके से यूज करेगा। एक उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा। उसके बाद कुछ एनर्जी बाकी है, देन एटम खुद यूज करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, द ऑब्जॉर्ब्ड एनर्जी
will be used by outermost orbit का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। इसको पहला हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम का बच्चे जैसा है, तो बच्चे को पहला पेरेंट देता है। एक बार आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स यूज किया, उसके बाद एटम खुद यूज करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी बच्चा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इसको कैसे यूज करेगा बताइए? आपको पता है वो वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस है, तो जैसे ही उसको थोड़ा एनर्जी दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम से डिटैच होके बाहर आ जाएगा, राइट? एंड अभी ये एटम से बाहर है बट कंडक्टर का अंदर ही है। अच्छा मेरा वर्डिंग को ध्यान से सुनो, मैंने बोला वो एटम से बाहर है, कंडक्टर का अंदर ही है, राइट? इसका मतलब वो कंडक्टर के Yes, अंदर sir. फ्रीली, इसका मतलब वो कंडक्टर के अंदर फ्रीली किधर भी मूव हो सकता है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंड हम लोग ने जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है। बच्चा कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव होता है, ये वाला या ये वाला? Free electron. ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होता है, क्योंकि इसको तो निकाल ही नहीं सकते हैं, राइट? इसके लिए एक करंट को पास करने में हेल्प करता है, इसके लिए वी डू कॉल इट एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बच्चा टर्म समझ में आ रहा है? Yes. सो इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। इज इट ओके? एंड बाकी Yes, का sir. जो एनर्जी है, जैसा मैंने बोला कि वो एटम यूज करेगा, तो एटम क्या करेगा? वो एनर्जी से थर्मल वाइब्रेशन करता है, थर्मल वाइब्रेशन। वो मैं नेक्स्ट इसका बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है, राइट? अभी ये तो आपको समझ में आएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पहला यूज करेगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, देन बाकी का एनर्जी एटम यूज करेगा एंड एटम विल सेट इटसेल्फ इनटू थर्मल वाइब्रेशन, that we will discuss after this. But everybody followed up to this much? Sir. Yes, sir. Yes. तो बच्चा conclusion या concept number 3, can I say atom will have free electrons? Concept number 3, atom of conductors will have free electrons since they absorb heat energy या thermal energy from where बच्चा? From surrounding, right? बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. फाइन। अब ये और एक बात बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बोला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोला, राइट? Yes, sir. ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये वाला देखो, ये वाला, इसको हम लोग बाउंड चार्जेस बोलते हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों बाउंड बोलते हैं बच्चे? क्योंकि इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। आई होप यू गेटिंग। ये फ्री है और वो बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसके लिए बाउंड चार्जेस बोलते हैं, या इसको फ्री चार्जेस बोलेंगे, फ्री चार्जेस। एंड ऑब्वियसली इसको हम लोग बोलेंगे बाउंड चार्जेस। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक सबको समझ में आ गया, बराबर है? Sir, I have a doubt. Yes, sir. यस बच्चा, टेल मी। सर आपने बोला कि एटम का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग हो जाता है, राइट? लाइक फ्रीली मूव करने लगता है। सो बेसिकली आपने बोला कि जो एटम है वो एक तरफ से ब्रेक डाउन ही हुआ ना, तो एटम कैसे ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन नहीं बच्चा, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो आयोन बन जाता है। आयोन, यू नो आयोन, राइट? सो इट विल बिहेव लाइक ए पॉजिटिव आयोन, राइट? हाँ सर। राइट, आपने पढ़ा है ना, नेगेटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। सो बेसिकली atom being a neutral, if it is losing one electron, it means it will behave like a positive charge, positive ion बन जाता है, right? You getting me? Yes sir. Yeah, I got it. So it will it will search for one electron, क्योंकि जब तक वो शांति से नहीं बैठेगा, जब तक उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल नहीं जाता है। बट ये बंदा जो बाहर निकल गया, उसको बस एनर्जी ज्यादा है, वो जल्दी बाहर नहीं जाएगा उधर। जब वो घूमेगा, जब उसका एनर्जी कम होएगा, देन वापस उधर ही चले जाएगा। यू गेटिंग?
अच्छा, ओके सर। हाँ, मतलब एटम अभी एक इलेक्ट्रॉन, उसका बच्चा एक निकल गया है, राइट? वो जब तक उसका बच्चा नहीं मिलता है तब तक शांति से नहीं बैठेगा, मतलब इट विल प्रोड्यूस वन फील्ड, उसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म से बोलते हैं। बट हमारा बच्चा जो निकल गया है उसके पास एनर्जी बहुत है, वो तो आएगा ही नहीं जब तक वो मूव होगा, एनर्जी कम होगा, देन कम होएगा तो आएगा वो वापस। डिड यू गेट दैट? हाँ सर, यस। राइट। सो एवरीबडी फॉलोड बच्चा? एवरीबडी फॉलोड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फाइन बच्चा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 लिख लो बच्चे, कंप्लीट कर लो।
सर हो गया। Okay, so नहीं done हुआ, sir. everybody? No, sir. Yes, sir. No, sir. Fine, fine. No, कर लो sir, बच्चे, कर no. लो। So now done? Yes, sir. Yes, sir. Fine, fine. So I hope everybody finished. Yes, sir. ठीक है. So obviously now we will talk about thermal vibration. क्योंकि आपने देखा होगा जब आप एक मेटल को हीट करते हैं तो मेटल एक्सपांड होता है, राइट? तो एक्सपांशन इट हैपेंस, उसको हम लोग थर्मल एक्सपांशन भी बोलते हैं। ये थर्मल एक्सपांशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशन, क्योंकि एटम वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो एटम वाइब्रेट किया तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन द एटम बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट इट इज थर्मल वाइब्रेशन। Vibration of atom. Fine. बच्चा मान लो ये एटम का एक्चुअल पोजीशन है, सो दिस इज मीन पोजीशन बोलेंगे इसको, नहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। और हियर वी हैव गॉट एटम, सो दिस इज गोइंग टू बी द एटम। तो जैसे वो टेम्परेचर हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, ऑब्वियसली वो ऊपर जाता है, देन नीचे आता है, देन नीचे जाके वापस ऊपर आता है। समझ में आ रहा है ना? ऊपर जाके इधर आके नीचे जाके वापस आता। सो बेसिकली इट विल परफॉर्म वाइब्रेशन लाइक दिस। आई होप यू गेटिंग राइट? Yes, sir. अभी बच्चा मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करता है, या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम फ्रॉम द मीन पोजीशन will be referred as amplitude of the thermal vibration, right? So as I told, the maximum displacement of atom from its mean position is called amplitude. Position is called amplitude. ये आपको पता रहेगा, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है? अभी बच्चा इधर से सपोज एटम इधर है, ऊपर गया, मीन पे आया, नीचे गया, फिर से इधर आया, तो ये वन ऑसिलेशन होता है, राइट? Yes. बच्चा देखो, इधर से ऊपर जाएगा, मीन पे आएगा, नीचे जाएगा, देन मीन पे आएगा, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। उसके लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। सो द टाइम रिक्वायर्ड
to complete one vibration या oscillation is called time period, is called time period, जिसको हम लोग कैपिटल T लेंगे, कैपिटल T। बच्चा एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड समझ में आया? Yes. Yes, sir. हाँ, फॉर ए गिवन मटेरियल, मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए टाइम पीरियड will always remain constant, period will always remains constant। मतलब आपने आयरन का कंडक्टर लिया, देन ऑब्वियसली उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, ऊपर जाके नीचे आके, देन नीचे जाके ऊपर आने के लिए जो टाइम लगता है वो हमेशा सेम होता है, वो कितना भी एम्पलीट्यूड कवर करने दो। मतलब छोटा एम्पलीट्यूड कवर कर रहे तो स्लोली जाएगा, बड़ा कर रहे तो फास्ट जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। आई होप यू गेटिंग। सर मतलब Yes, टाइम sir. पीरियड मतलब से एक ही टाइम पे वो ऊपर से मतलब कितना भी ले सकता है। हाँ 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 बच्चा, देखो अभी एम्पलीट्यूड इतना ही है, इतना ही, ये मीन है, तो स्लोली जाएगा, ऊपर नीचे जाके आएगा, तो टाइम 1 सेकेंड है। अभी बड़ा डिस्टेंस है तो उसको 1 सेकेंड में ही करना है तो फास्ट जाएगा, और बड़ा किया तो और फास्ट जाएगा, बट उसको एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है लॉजिकली? Yes, sir. यस मतलब ये 1 सेकेंड खाली आयरन के लिए, तुम कॉपर लेगा तो उसका 2 सेकेंड होगा, मतलब वो 2 सेकेंड कांस्टेंट रहेगा। आई होप यू गेटिंग। Yes. मतलब ये नहीं बोल रहा कि टाइम पीरियड हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट है, राइट? मतलब तो हर एक मटेरियल का अलग अलग टाइम दिया है ना? हाँ, टाइम पीरियड अलग अलग रहेगा, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर हर एक का अलग अलग होता है ना, राइट? Yes, sir. हाँ, अभी ध्यान से सुनो बच्चा, जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, वी फाउंड दैट टेम्परेचर जो है, या इन अदर वर्ड्स उल्टा लिखूंगा तो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, टेम्परेचर कम है तो एम्पलीट्यूड कम है, बराबर है? Yes, तो sir. डोंट यू थिंक स्पीड ऑफ वाइब्रेशन जो है, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, डोंट यू थिंक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है? क्योंकि हमको पता है टाइम पीरियड सेम है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम है तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन भी कम होगा, राइट? तो ऑब्वियसली मैं स्पीड ऑफ वाइब्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख सकता हूं, बराबर है? Yes, sir. मतलब टेम्परेचर ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा, एंड एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन भी ज्यादा, क्योंकि उसको टाइम पीरियड कांस्टेंट रख के वाइब्रेशन करना है। तो एम्पलीट्यूड कम है तो स्लोली ऊपर नीचे जाएगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो फास्ट जाएगा। इज इट क्लियर Yes. Yes, sir. Yes. यस सर बच्चा? ये दोनों कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एंड टाइम पीरियड फॉर ए गिवन मटेरियल कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली हमको वो भी एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। हम लोग ने हर एक मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में वाइब्रेशन चेक किया तो टाइम पीरियड कांस्टेंट आ रहा था। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. फाइन बच्चा, लिख लो, इसको भी लिख लो। ये आगे जाके आप जब रेसिस्टेंस का बात करेंगे ना, उधर आपको हेल्प होगा, रेसिस्टेंस को समझने के लिए हेल्प होगा। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको पता रहना चाहिए कि एटम वाइब्रेट होते रहता है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो एटम वाइब्रेट हो रहा है। डोंट यू थिंक बच्चा उनका बीच में कोलिजन हो सकता है? Yes. यस सर बच्चा सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और एटम वाइब्रेट हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, राइट? कोलिजन है तो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन है तो रेसिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? Yes. यस सर ओके बच्चे, कंप्लीट करो। Yes, sir.
सर ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन इस बच्चा टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो, राइट? मतलब सर दूर की मतलब फटाफट? एक पर्टिकुलर मोशन बार बार रिपीट होना। अच्छा। अभी उसमें बहुत सारा केसेस आता है बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे ऑसिलेशन। The motion of a body which repeats at regular interval of time will be referred as oscillation. समझ में आ रहा है? यस सर। सर मतलब वो जो नीचे वाला आपने जो 3 लिखा है कॉन्सेप्ट 4, वो मतलब कांस्टेंट है ना एक दूसरे से? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सब कांस्टेंट, टेम्परेचर हाँ। अलग हुआ तो दोनों चेंज होगा, ओके। राइट? सर एम्पलीट्यूड मतलब उसका टेम्परेचर का वो ना? नहीं, एम्पलीट्यूड ये है बच्चा, देखो ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, मतलब मीन से एटम ऊपर कितना जा सकता है वो एम्पलीट्यूड है। वो नीचे से भी उतना ही जाएगा, ऊपर ए है तो नीचे भी ए है। यस सर। बच्चा देखो मैंने स्मार्टली इधर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल फाइनल होता है, डिस्टेंस नहीं लिखा है मैंने। बराबर है, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी मैं किसी को पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, आप ए बोलेंगे, तो कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एटम इन वन ऑसिलेशन? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन वन ऑसिलेशन? 2a। 2a। एनीबॉडी? 2a बराबर है बच्चा? इज इट 2a? बच्चा सुनो, ऊपर गया a, नीचे आया a, फिर से नीचे गया a, फिर से इधर आया a, तो 4a 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 4 है। बराबर ना? तो डिस्टेंस 4a होता है। इसके लिए मैंने स्मार्टली उधर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ए ही होगा, आप ऊपर लो या नीचे लो, इट इज गोइंग टू बी ए, राइट? Yes, sir. ओके, लिख लिया बच्चा? Yes, sir. Yes. करें? फाइन। सो हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा, चलो अभी पॉइंट जो है डिस्कस कर रहे हैं उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। मान लो बच्चे एक मेटालिक कंडक्टर है, सो देयर इज अ मेटालिक कंडक्टर, आप आयरन भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। सो कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर। अब ये जो मेटालिक कंडक्टर है ना बच्चा, उसको मैंने वॉल्यूम कंसीडर किया है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 cc। क्या होता है 1 cc बच्चा? ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, राइट? राइट? Yes, sir. बच्चा 1 सेंटीमीटर मतलब उल्टा किया तो ऐसा 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, बराबर है? यस Yes, sir. जिसको हम लोग 10⁻² सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो इसको वो साइड में लिया तो 1 सेंटीमीटर विल बी 10⁻² मीटर आएगा, राइट? यस Yes, sir. अभी आपको सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब लेना पड़ेगा, तो इधर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इधर -2 का क्यूब 10⁻⁻6 होगा और मीटर क्यूब होगा। तो इसका मतलब एक्चुअली में जब बोलता हूं 1 cc मतलब ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब का बात हो रहा है, राइट? Yes, sir. एंड जिसको Yes, भी sir. थोड़ा बहुत मीटर का पता है और 10⁻⁻6 जब आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम जो मैं कंसिडर कर रहा हूं इट इज वेरी 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 स्मॉल, राइट? Yes, sir. सपोज ये जो कंडक्टर है उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर पे,
right? So I have placed at room temperature. So room temperature obviously 25 से 28 तक रहता है, but इंडिया में 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर है, राइट? दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, राइट? Yes. sir. अभी जितना भी अंदर एटम्स होगा ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर हीट को ऑब्जर्व करेगा। सो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसमें ऑलरेडी मैंने कंसिडर किया कि वॉल्यूम इतना है, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें, सपोज मेटालिक कंडक्टर लिया अराउंड 10⁻28 से 10⁻20 पर मीटर क्यूब होगा, मतलब पर मीटर क्यूब, समझ में आता है ना? Yes. मतलब एक मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन से बचे? 10⁻28 है 10⁻20. या 10⁻30 है, मतलब ये रेंज है, क्योंकि हम लोग ने एक पर्टिकुलर मटेरियल नहीं लिया ना, मेटालिक बोला है, तो एक रेंज मिलेगा हमको, मतलब इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एंड देखो 10⁻1 10 है, 10⁻2 100 है, 10⁻3 1000 है, अभी मैं बात कर रहा हूं 10⁻28, तो आप सोचो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लार्ज, राइट? ह्यूज इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ऑब्वियसली शांति से तो बैठा नहीं रहेगा क्योंकि वो फ्री है, तो टेम्परेचर की वजह से वो मूव होता है, तो टेम्परेचर की वजह से जो मूव होता है उसका वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चा, थर्मल वेलोसिटी, राइट? एंड थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू अराउंड 10⁻5 से 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 10⁻5 और 10⁻6 आप समझ सकते हो, वेलोसिटी एकदम ज्यादा है, ट्रेमेंडस स्पीड है, राइट? बच्चा सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. लिया उसको रूम टेम्परेचर में रखा तो देखा तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हाई वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज 10⁻5 टू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने पढ़ा है जब भी चार्ज मूव होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, बराबर है? सो कैन यू टेल मी बच्चा, करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतना सारा इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करना चाहिए, बराबर है ना? Yes, sir. बट आपने कभी देखा है कि सपोज आप जो जिधर बैठे उधर ऑब्वियसली डोर होगा, डोर को एक हैंडल होगा, सो हैंडल भी मेटल से बना है, तो अभी उसको जाके आप टच करेंगे तो उसमें करंट पास हो रहा है होता, तो आपको तो एक माइन्यूट शॉक लगना चाहिए था, बराबर है? Yes, sir. ऐसा तो नहीं होता है, आप टच करेंगे तो शॉक लगता है क्या बच्चा? नहीं लगता है, बराबर है? इसका मतलब वी आर 100% श्योर देयर इज नो करंट प्रोड्यूस्ड, मतलब करंट ऑब्वियसली जीरो है। बच्चा समझ में आया? आप कौन सा भी मेटल आपका घर पे है, ड्रावर हो सकता है, राइट? क्योंकि मेटल गोदरेज है तो उसको टच कर लो, इतना पक्का है वो मेटल से बना हुआ है, बट उसमें शॉक नहीं लगता है, तो शॉक नहीं लग रहा मतलब देयर इज नो करंट, राइट? Yes. अभी Yes, sir. बच्चा इवन दो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो मूव हो रहा है तो हम लोग करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। कैन यू टेल मी द रीजन बच्चा, व्हाई करंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड हियर? डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। बराबर है बच्चा, एक्सलेंट, वेरी गुड, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू बी जीरो, तो नेट करंट भी क्या होगा बच्चा? जीरो होगा। मैं आपको समझाता हूं क्या है। सो ऐसा देखो, एक मान लो क्यूब लिया आपने, यूनिट वॉल्यूम क्यूब, ये आपका यूनिट वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चा, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मूव होते रहता है। अभी लॉजिकली आपको बताना है तो जितना इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाता है उतने इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पे जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स राइट में जाता है वही टाइम पे, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा? जीरो। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes. So no current is produced. No current is produced since free electrons, because here since free electrons are moving in random direction, in random directions, or all possible directions. मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने पर भी हम लोग करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है. बच्चे, यू एग्री विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. आपको करंट को प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन के एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. मूव करना है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी देना पड़ेगा. एनर्जी देना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा. बराबर है Yes. बच्चे? क्लियर है? बेसिक समझ में आया इधर तक? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता है, तो कैसा जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे. आई होप इधर तक तो क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे, कंप्लीट करो, देन वी विल स्टॉप.